name is Amit Maurya, and today I am going to teach you about the squares and how you are going to remember all these squares of number 1 to 100. And you're welcome on EduBiz Academy. Okay. So for remembering the squares, what kind of tricks we need to apply and what kind of things we need to remember, that I'm going to tell you. What kind of basics that we need to remember. It is really very important to know the squares from number 1 to 25. And we should practice, we should keep on retaining, like in morning, evening, and whenever you are getting the time, because these numbers are playing really important role in your preparations of the exam, whether you belongs from the banking aspirants or you are from CGL background, that means the SSC preparations and any state level exams that you are going to give. So हम जानते हैं और हम देखते हैं स्क्वायर्स के बारे में कि क्या क्या चीजें और टेक्निक्स और टैक्टिक्स हम अप्लाई करते हैं इन नंबर्स को फाइंड करने के लिए। तो देखिएगा, आप फेमिलियर हैं नंबर से। मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स हैं 25 तक के जो कि मैं लिखता हूं, जो कि आप रिवाइज कर सकते हो, उनको लर्न कर सकते हो। देखिए 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर ऑफ 3 is said to be 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11। अब देखिए 11 एक ऐसा टर्म है जहां से चीजें थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही। So we must have to focus on this number 11 for a square, that it is 1 2 1, क्योंकि जनरली 10 तक तो आपने टेबल्स पढ़े हुए होते हैं, easily you can just multiply that number. If someone is asking you about the square of 7, it means that the 7 cross 7 and it is 49. Okay, so for 11 we must have to focus on this one number, that is 1 2 1. And if I am going to teach you about 12, so 12 is said to be 144. ये चीजें हमें याद रखनी है। 13 square is said to be 169. 14 square 196. Square of 15, जिसको आप लिखते हो 2 2 5. Square of 16 2 5 6. Square of 17 2 8 9. Square of 18, this is 3 2 4. Square of 19 3 6 1. Square of 20, this is 400. Square of 21, this is said to be 4 4 1. Square of 22, that is said to be 4 8 4. ऐसे ही हम अगर बात करते हैं 23 के स्क्वायर की, दिस इज 529. अगर हम बात करते हैं 24 के स्क्वायर की, तो इसको आप क्या कहते हो 5 7 6. और जो अभी आपको याद रखना है 25, ये है 6 2 5. तो आपने देखा कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। 11 से चीजों को ज्यादा फोकस करना है। नाउ यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ 11 इज 1 to 1 एंड सो ऑन वी विल मूव। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई द ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर्स फ्रॉम नंबर 26 to 50 and further 50 to 100. So we are going to learn about that. Focus over there. तो देखिए स्क्वायर्स के लिए ये हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस नंबर लाइन के लिए ये है 100, ये है 1, and we are dividing that number line into the following parts.
Like we all know that the basic is all about 25. Then there's 50 and 75. that is 75. वो लाइन नहीं निकलेगा। सो अब हम जानते हैं स्क्वायर्स को 1 से लेके 100 तक के। तो देखिएगा क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन नहीं है, ये एक नंबर लाइन। ओके, वी आर गोइंग टू plot the numbers over this line. See, we all know that this is number 1, this is 100. Okay, and we are dividing into the parts, so the half of that is 50 and somewhere there will be 75. Okay, and 25. क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम इस लाइन को, क्या मिलेगा हमको? ओके, हमने अभी सीखा 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स। सो मीन दिस काइंड ऑफ पोर्शन नाउ वी नो। ओके, जितनी भी ये इस लाइन में जितनी भी सारी चीजें हैं आपका, जो भी ये वाला पोर्शन है, नाउ यू रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, so the point is that how we are going to remember squares from 25 to 100. Okay, so I am going to tell you that how you can remember these kind of numbers in a well way. So चलिए start करते हैं इसको। So we all know that for 100, the square of 100 will be 100 cross 100. And we will get here this much number. Sure. तो ये एक ऐसा पार्ट है जो कि हम इजीली से जानते हैं जिसको, ठीक है। अब 100 के आसपास में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका अगर मुझे स्क्वायर जानना है या चीजें जाननी है तो मैंने इस नंबर लाइन को देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो 75 से लेके 100 तक का जो भी पोर्शन है उसके लिए हम एक चीज को फॉलो करेंगे एंड फर्दर वी विल फॉलो द अदर टैक्टिक्स। ओके, सो नंबर लाइन को हमने डिवाइड किया है 4 पोर्शंस में, 4 पोर्शंस में, ठीक है। तो देखिए वो पोर्शन कौन कौन से हैं। तो आप बोलेंगे कि सर यू आर टॉकिंग अबाउट 75 to 100, ठीक। दूसरा जो पोर्शन है वो आप बात कर रहे हैं 50 to 75 की। तीसरे पोर्शन की जो आप बात कर रहे हैं वो 25 से 50 की बात कर रहे हैं। एंड द लास्ट पोर्शन है वो क्या है, 1 से 25 बात कर रहे हैं। ओके, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज द बेसिक पोर्शन। क्या है, बेसिक है जो कि अभी आपने पढ़ा हुआ है, कंफर्म। तो हमें क्या जानना है, हमें पोर्शन वाइज में इनके स्क्वायर्स को जानना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहला टाइप, देखिए पहला टाइप वो क्या हो सकता है कि जो नंबर 100 के बिल्कुल पास में आते हैं। कौन कौन से नंबर्स, जैसे देखिए 100 का स्क्वायर 100 क्रॉस 100, तो ये देखिए कितना होगा 4 zeros। देखिए अब हम 99 की अगर बात करते हैं जो कि एक कम है 100 में से। ओके, सो इट मींस व्हाट, जितना नंबर 100 से कम है उसको हम लिखते हैं सबसे पहले एंड स्क्वायर इट। अगर नंबर एक कम है तो एक लिखते हैं, बट 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, लाइक इफ द नंबर यू आर गेटिंग 1 लेस, इट मींस 01। ओके, सो वी आर राइटिंग दिस एंड you need to subtract that number, means this number, from 99 itself. Okay, so you will get here 9801. Confirm? Okay, and so on. दूसरा देखिए नंबर हम लेते हैं 98. Okay,
अब देखिए इस 98 नंबर के लिए आपको क्या करना है। इस 98 नंबर के लिए ये नंबर 100 से कितना कम है, ये नंबर 100 से 2 कम है। 100 से ये 98 देखिए 2 कम है, ठीक है। जो नंबर 100 से 2 कम है इसका हमें स्क्वायर करना है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना, और उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करना है और 0 1 लिखना है, अगर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करना है और 0 4 लिखना है, ठीक है। तो हमने इस वाले नंबर का स्क्वायर किया तो जो आया 4, और 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो मतलब 0 4 लिखना है, समझ पाए? ओके। और ऑब्टेन्ड नंबर मतलब ये देखिए, ये जो 2 है, इस 2 को हमें, जो नंबर जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, देन वी विल गेट हियर 9 6 0 4, ठीक है। अब हम कई सारे नंबर्स को प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते हैं, जानते हैं, देखिएगा। जैसे हम यहां पे बात अगर करें 97 की, 97 के स्क्वायर की, तो आप कहेंगे कि सर ये नंबर 100 से 3 कम है कि नहीं। और पहला स्टेप अभी आपने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्क्वायर दिस, स्क्वायर करना है इसका। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका स्क्वायर होगा 9, कितना होगा 9। तो पहला स्टेप में हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है, लेकिन 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना है, और 9 तो 1 डिजिट के फॉर्मेशन में है, तो हम इसको लिखेंगे 0 9, ठीक। और मैंने फिर क्या बोला आपको कि जितना कम है 100 से 3 कम है, तो 3 हमें उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। उसी नंबर मींस दिस 97, 97 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 94। तो यहां पे क्या लिख देंगे 94, तो 9409 क्या है हमारा 97 का स्क्वायर, ओके। सपोज दैट हम एक और नंबर को लेते हैं, नंबर लेते हैं 96, क्या लेते हैं 96। अगेन पहला स्टेप 100 से कितना कम है, देखिए आप बोलोगे कि 100 से सब 4 कम है, ठीक। फिर आपने बोला कि जो जितना कम है उसका करो स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ओके। सो स्क्वायर किया तो हमें मिला 16। अब जैसे ही हमें 16 मिला तो आप कहोगे, अभी आपने बोला था कि जब यूनिट डिजिट के फॉर्मेशन में हमें नंबर्स मिल रहे थे, जैसे 100 से 1 कम था 99 के केस में तो हम 0 1 लिखते थे, बट यहां केस में क्या हुआ, यहां पे हमें मिला 16, क्या मिला 16, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 16, ओके। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते थे, व्हाट वाज सेकंड स्टेप, ओके। Second step was that from the number 96 we will subtract this number 4 and we will get here 92. So this 9216 will be the answer of your, okay। अब हम मूव करते हैं इसके आगे, सपोज करो कुछ नंबर्स को लेते हैं, नंबर लेते हैं 95। पहला स्टेप मेरे साथ बोलते जाओ, आप कहोगे कि सर आपने 100 में से 95 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया। फिर दूसरा स्टेप आपने इसका स्क्वायर किया, दूसरा स्टेप क्या था, इसका स्क्वायर किया, नंबर मिला हमें 2 डिजिट की फॉर्म में, तो मतलब हमें इसको एज इट इज 25 लिख देना है, ठीक है, लिख देना है कि नहीं, अब लिख देना है। अब जो 5, ये जो 5 था 100 से, ये जो 5 था इसको हमें अपने इनिशियल नंबर मतलब 95 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 9025। अगर हम यही बात करें 93 की, तो आप बोलोगे सर
ये वाला नंबर 100 से 7 कम है। कितना कम है? 7। दूसरा स्टेप इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो मिला कितना? 49। नंबर किसके फॉर्म में है? 2 डिजिट्स के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? 49 लिख लेंगे। फिर जितना हमने ये 7 नंबर, ये वाला नंबर जितना हमने अभी 100 में से सब्ट्रैक्ट किया था, सेम उसी नंबर को 93 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब 93 से हमें क्या करना है? 7 करना है सब्ट्रैक्ट। अब देखिए सब्ट्रैक्ट जल्दी से जल्दी सब्ट्रैक्शन भी कैसे किया जा सकता है। इन फर्दर वीडियोस आई विल टेल यू द ट्रिक्स दैट हाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर्स इन अ वेरी इजी फॉर्म, और जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 93 लिखा है, 93 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 देखिए 90 के ऊपर 3 है, तो 3 खत्म हो गया, कितना बचा? 4। अब 90 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा? 86। सिंपल, सो वी कैन राइट देयर 8 6 4 9। ओके, अब हम कोई नंबर ले सकते हैं जो कि 75 से बड़ा हुआ है। जैसे कि हमने नंबर ले लिया 88। हमने क्या ले लिया? एक नंबर ले लिया, और नंबर लिया मैंने 88। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्क्वायर्स ऑफ 88। सी, नंबर है 88 स्क्वायर। सो आप कहोगे कि ये 88 जो है, पहला स्टेप 100 से कितना कम? आप बोलोगे कि सर 12 कम है। फिर आप कहोगे कि सेकेंड स्टेप यू नीड टू अप्लाई द स्क्वायर ऑफ दिस 12 विल बी 144। बट यहीं पे आप कहेंगे कि सर अभी आपने बात किया था कि 2 डिजिट्स लिखने हैं। कितने डिजिट लिखने हैं? 2 डिजिट्स। सो वी विल राइट ओनली 4 4, और एक को हमको कैरी के लिए बचा के रख लेना है। किसके लिए? कैरी के लिए, मतलब हासिल जो बोलते हो आप। ओके, सो नाउ जो नंबर अभी आपने सब्ट्रैक्ट किया है मींस दिस 12, क्या सब्ट्रैक्ट किया है? 12। ओके, अब इस 12 को हमको क्या करना है? 88 से सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड स्टेप, 88 माइनस 12, तो देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। कितना है? 76। अभी 76 में हमें क्या जोड़ना है? अपना कैरी जोड़ना है, जो कि कैरी ऊपर बैठा हुआ है। आ गया कैरी, कैरी जुड़ गया, तो कितना हो गया? ये हो गया 7 7 4 4। ठीक है, तो हमने ये भी जान लिया कि अब जब कैरी का फॉर्मेशन आना है तो कैसे करना है। वैसे ही हम एक नंबर ले लेते हैं, यहां पे देखिए 86। कितना? 86। अब 86 आप बोलोगे कि 100 से कितना कम है? देखिए ये रहा 4 आपका, यहां पे देखिए कितना रहा? 1, सो 14 का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। तो आप बोलोगे कि सर नाउ फॉर सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप में क्या करना है? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर 196। 2 डिजिट्स लिखने हैं, आप सीधे 96 लिख दोगे। कितना कैरी? 1 कैरी। ओके, अब हमें क्या करना है? जो नंबर था 86, उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या होगा? ये होगा 2, और ये कितना होगा? ये होगा 7 72, और इसमें क्या करना है? कैरी ऐड करना है। तो ये कितना हो गया? 7196। नेक्स्ट, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं 75 से 100 तक के नंबर्स के लिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर अवर सेकेंड पोर्शन, एंड सेकेंड पोर्शन क्या है? पहला पोर्शन हमने पढ़ा कि 75 से 100 तक के स्क्वायर्स। ओके, पहला स्टेप क्या करना है आपको? 100 में से उस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 100 माइनस गिवन नंबर। 100 माइनस व्हाट? 100 माइनस गिवन नंबर, जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। And the second one thing is that
जितना आपको पहले केस में रिजल्ट मिलता है सब्ट्रैक्शन के बाद में, ओके, उसका क्या करना है हमको, उसका करना है स्क्वायर, ठीक है। और उस नंबर को कैसे लिखना है, उस नंबर को हमें लिखना है 2 डिजिट्स के फॉर्मेशन में। कैसे लिखना है, 2। ओके, नेक्स्ट अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप ये है कि जो नंबर गिवन नंबर है, गिवन नंबर उसमें से हमें वो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना है जो कि अभी 100 माइनस गिवन नंबर से आपने किया था, ठीक है। तो देखिए 100 माइनस गिवन नंबर, okay, this is said to be what, tricks and trick of what, for finding the squares of number 75 to 100, okay। चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन के लिए चलते हैं। जो सेकंड पोर्शन था हमारा, वो सेकंड पोर्शन था 75 से 50 तक के स्क्वायर्स को फाइंड करना। कैसे फाइंड करना है देखिएगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं 50 की, तो आप बोलेंगे कि सर स्क्वायर ऑफ 50 इज 50 क्रॉस 50, इट इज सेड टू बी 2500, ठीक है। अब ये देखिए ये 50 मैंने क्यों लिया, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट होगा, वरना मैं क्यों बताता आपको ऐसे, ओके। सो फॉर दिस वन एक चीज हमें रिमेंबर रखनी है हमेशा और हमेशा, जब भी कभी हम बात करते हैं 50 से 75 के स्क्वायर्स की, तो हमें एक बेस वैल्यू लेके चलनी पड़ती है। क्या लेके चलना पड़ता है, बेस वैल्यू। क्या हम लेंगे, एक हम बेस वैल्यू लेंगे, ओके। देखिए क्या रहेगी वो बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, और वो बेस वैल्यू हम क्या लेते हैं 25, श्योर। नेक्स्ट अभी हमने ये सीखा कि 50 से 75 के लिए बेस वैल्यू हमें लेना है 25। अब देखिए कैसे इसके स्क्वायर्स को निकालते हैं। देखिए अगर हम यहीं पे बात करें 75 की, किसकी बात करें 75, ठीक है। तो कैसे निकालना है 75 का स्क्वायर, देखिए इसके दो मेथड्स हैं स्क्वायर निकालने के लिए, बट वी विल फॉलो द फर्स्ट वन फर्स्ट and then we will talk about the second method, okay। देखिए अब ये नंबर देखिए 50 से कितना ज्यादा या कम है, ये हमें देखना पड़ेगा कंपैरिजन में, ओके। so that's why we are going to remember the number which is nearer to the 50, okay। so 50 के पास में कौन सा नंबर है सबसे पहले, तो आप बोलोगे कि सर 50 के जो सबसे पास में नंबर है वो आप 51, क्या है 51। देखिए 51 जो नंबर है 50 के पास में है और ये है 50 प्लस 1, एक ज्यादा है 50 से, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। सो जितना ज्यादा है हमें उसका करना है पहले स्क्वायर, और उसको कैसे लिखना है, वही 2 डिजिट्स की फॉर्मेशन में, ओके। एंड देन हमें बेस वैल्यू, अभी हमने सीखा था कि एक बेस वैल्यू है और बेस वैल्यू वो क्या थी 25, और उस 25 में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है इसको, और तो बेस वैल्यू कितनी है 25, ओके। सो 25 में हमें क्या चीज को ऐड कर देना है, ये जो 1 आप देख रहे हैं, मींस 2601, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 52 के स्क्वायर की, 52 के स्क्वायर में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कि भाई ये नंबर 50 से 2 ज्यादा है, ओके।
So we will square this 2 and the square of 2 is what? 4 because 2 digits की फॉर्मेशन में लिखना है. ओके एंड नाउ 50 से दो नंबर ज्यादा है इसीलिए हम क्या करेंगे 25 में 2 ऐड कर देंगे 25 एंड 2 27. ओके एंड सपोज करो यहीं पे हमें क्या नंबर लेना है. अब मैं नंबर ले लेता हूं 55 फॉर योर प्रैक्टिस. तो आप कहोगे कि सर ये 50 ये 5 हमें जितना नंबर ज्यादा है उसका करना है स्क्वायर क्योंकि अब 2 डिजिट्स की फॉर्मेशन में आ गया और जितना ज्यादा है उसको हमें बेस वैल्यू मतलब 25 में ऐड कर देना है और हमें लिख देना है यहाँ पे. सो मींस 3025. ओके अब अगर सपोज करिए कि यहीं पे मुझे नंबर लेना है 60 तो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान है 50 प्लस 10 और आप 10 का स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है तो ठीक है 1 कैरी चला गया. और आपने अभी बोला था कि 25 एक बेस होता है और उस बेस में क्या करना है हमको. बेस में देखिए ये 25 बेस है. ओके अब इस बेस में हमें ये 10 जो है ऐड करना है तो कितना आ गया 35 और 35 में एक कैरी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36. तो हम देख पा रहे हैं कि 3600 क्या है ये स्क्वायर है किसका 60. श्योर. And now we are moving for the next one. Suppose that we are taking the number 65. So 65 we need to write here 50 plus of 15. Okay. You all know that now the square of this number and the square of 15 is said to be 255. ये होता है कि नहीं होता है. Okay. तो आप क्या बोलोगे कि सर we will write only 2 digits. तो 2 कहां चला गया 2 चला गया कैरी. ओके अब फिर क्या करना था. अब इस 15 को हमको अपने बेस नंबर 25 में क्या ऐड करना है 15 जितना एक्स्ट्रा भी था. तो देखिए कितना हो जाएगा 35 एंड दिस इज गोइंग टू बी 40. अब इस 40 में कौन ऐड होगा कैरी वाले भाई साहब. ओके सो मींस 2 एंड नाउ दिस इज 40. तो देखिए कितना इजी है इन नंबर्स को फाइंड करना नंबर्स के बारे में जानना. ओके अब चलिए सपोज करिए हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 74. तो मेरे साथ में आप करते जाइए बोलते जाइए ये 74 नंबर कैसे आपको मैनेज करना है. सो नाउ वी आर द नंबर्स 74. तो 74 में आप कहेंगे कि सर पहले तो आप 50 लिखिए एंड देन हम आप ऐड करिए कितना ऐड करें 24 आप ऐड करेंगे. ओके फिर आप कहेंगे कि सर आप 24 का स्क्वायर करिए एंड यू ऑल नो नाउ स्क्वायर ऑफ 24 याद तो हो गया होगा. अब तो कितना होता है जोर से बोलो 5 देन 7 देन 6. सो हमें क्या करना है सबसे पहले हमें ये वाले डिजिट्स लिखने हैं 7 6 5 हो गया हमारा कैरी भाई साहब प्लस एक बेस नंबर क्या है 25. ओके अब इस 25 में हमें एक्स्ट्रा वाला ऐड करना है. तो एक्स्ट्रा वाला क्या था 24. अब कहेंगे कि सर दिस इज 49. अब इस 49 ऑब्टेन्ड रिजल्ट में कैरी आ जाएगा. सो 9 देखिए हमें ऐड करना कितना हो जाएगा 4 5. तो हमें क्या लिख देना है यहाँ पे हमें लिख देना है 5 4 7 6 will be square of what 74 will be square of what 74. ओके अब देखिए अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट नंबर की तो हमारा लास्ट नंबर क्या होगा. देखिएगा हम बात करते हैं अपने लास्ट नंबर की. वो लास्ट नंबर कौन सा है 75. which one number 75. तो 75 is said to be what 50 plus 25. आप बोलेंगे कि सर लास्ट वाले नंबर का आप करिए स्क्वायर ऑफ दिस इज 625. we need to write first of all 25 and then 6 is going to be carry. okay और एक बेस नंबर होता था बेस वैल्यू होती थी वो होती थी 25 जिसमें हम एक्स्ट्रा जितना था वो ऐड करते थे 25. ओके तो देखिए कितना आता है
ये आता है 50 और 50 में कैरी भाई साहब को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 56. सो वी विल राइट देयर 5 6 2 5. श्योर. ओके. तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने ये जाना कि 100 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स आपको ऐसे लिखने हैं. ओके. और 50 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स कैसे करने हैं. ओके. तो एक बार हम मूव करते हैं आगे की तरफ, एंड दैट वन वाज व्हाट, द लास्ट पोर्शन, एंड दैट लास्ट पोर्शन इज स्क्वायर्स फ्रॉम 25 to 50. अगेन स्क्वायर ऑफ 50 विल बी व्हाट, आप बोलेंगे कि सर दिस इज 50 क्रॉस 50, इट इज सेड टू बी 2 5 0 0. ओके. तो यहां पे 50 के हम आसपास की जब भी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमें एक बेस वैल्यू लेनी पड़ेगी, है कि नहीं. और वो बेस वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे कि सर वही 25 लेना पड़ेगा. ओके. 25. ओके. अब हमें यहां क्या करना है, चेंज कितना है. देखिए अगर हम यहां पे बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, अब हम यहां पे बात करते हैं कि सपोज करिए कि एक नंबर है और वो नंबर कितना है, साइड. अब यहां पे हम बात करते हैं नंबर की, पेन छोटा कर दूंगा, पेन बहुत बड़ा है. अब हम यहां पे बात करते हैं एक नंबर की जो कि 50 से कम है, और 50 से कम कौन सा नंबर लेते हैं, देखिएगा नंबर सपोज करिए कि हमने लिया है 49. ओके. अभी तक हम जब 50 के ऊपर थे तो हम प्लस लिखते थे, अब हम 50 के नीचे बात कर रहे हैं, सो मींस 50 माइनस 1 हम लिखेंगे. ओके. 50 माइनस क्या लिखेंगे, 50 माइनस 1 लिखेंगे. ओके. और 50 माइनस 1 लिखेंगे एंड देन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इट इज सेड टू बी 1. तो हम इसको 2 डिजिट्स के फॉर्मेशन में लिखेंगे, मतलब 0 1. ओके. और हमारा क्या है, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया है, ये आया है 2 4. सो 2 4 0 1 will be your answer of, will be your square of 49. ओके. अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक नया नंबर लेते हैं, सपोज करिए हमने लिया 48 का स्क्वायर. तो आप बोलोगे सर ये 48 जो है 50 से 2 है, एंड देन what we will do, we will do square of this, so square of this that is 4. Okay. So देखिए स्क्वायर हम लिखते हैं 0 4. Okay. And now what we need to do, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू में हमें क्या करना है, 4 कम करना, कितना है 2 1. So we will write here 2 1 0 4 will be the square of what, 48. अब देखिए हम जल्दी जल्दी चीजों को बात करते हैं. अगर हम बात करें 47 की, किसकी बात करें, 47 की, then you will say this number is 3 less than 50. Okay. So what you will do, first step will be the square of this 3, that means 0 9. So you will write there 0 and 9. Okay. And base value में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, you will get here, this is going to be your 22. So 2 2 0 9. ओके. अगर हम यही बात करें कि हमें 45 की बात करनी है, किसकी बात करनी है, 45. सो देखिए ये जो 45 नंबर है 50 से कितना कम है, आप बोलेंगे कि सर 50 से, ये वाला जो नंबर है वो 50 से 5 कम है. ओके. सो स्क्वायर ऑफ दिस 5 इज गोइंग टू बी 25. बेस वैल्यू कितनी थी, 5. इसमें से क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा 20. सो 2025 विल बी द आंसर ऑफ 45. ओके. अगर सपोज करिए कि हम यहीं पे एक नया नंबर लेते हैं, अब वो नंबर है 35. सो आप बोलोगे सर 50 माइनस 15. ओके. देन स्क्वायर ऑफ दिस 15 इज सेड टू बी 2
2 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 डिजिट्स लिखना है, दैट मींस 25 एंड देयर विल बी अ 2 कैरी, मतलब 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ओके, एंड देन 25 एक बेस था और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा था हमारा, देखिए 15, और इस 15 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या करना है इसको, ये हुआ 0, ये कितना हुआ 10। ओके, और इस 10 में हमें क्या करना है, 10 में हमें 2 ऐड कर देना है, ये हुआ 12। सो 1 2 2 5 will be answer of your, okay, means square of 35 is said to be 1225। ओके, अगर हम यहीं पे बात करें अभी एक नंबर की, देखिए वो नंबर है 30 का स्क्वायर, सो यू विल से सर 50 माइनस 20। ओके, देन इस 20 का स्क्वायर करना है आपको। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो अभी क्या करना है आपको, दो प्लेसेस के डिजिट्स को लिखने हैं, 0 0 एंड 4 विल बी योर कैरी। फिर तीसरा स्टेप 25 बेस वैल्यू। अब इस बेस वैल्यू में से क्या करना है, जितना 20 है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट हियर 5। अब इस 5 में क्या करना है, हमें कैरी जोड़ देना है, सो मींस वी विल गेट हियर 9। तो देखिए 3 है, 30 का क्या है स्क्वायर 900। ओके, so this is all about your squares and you can practice the things in a well way. So again I am just going to give you a brief of the number and things. Okay, so you will say, so you have divided the squares into the 3 forms and these forms are what, from 100 to 75, 50 to 75 and then 25 से 50। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो क्या था, बेस वैल्यू। क्या था, हाँ बेस वैल्यू, और ये बेस वैल्यू हमने कितनी ली थी, 25। कंफर्म। देखिए अब यहां पे हमने दो केसेस लिए थे, ये एक नंबर जो 50 से ज्यादा है और एक नंबर जो 50 से कम है। श्योर, ओके, तो यहां पे जो बेस वैल्यू होती थी 25, उसमें हम नंबर्स को क्या करते थे, ऐड करते थे कि नहीं, और इस वाले में क्या करते थे, बेस वैल्यू से नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते थे। ओके, और हमें आंसर्स मिल जाते थे। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, यू कैन प्रैक्टिस द थिंग्स इन अ वेल वे। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए देता हूं जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, 97 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 86 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 55 का स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 45 का स्क्वायर। फिर मैं आपको देता हूं 39 का स्क्वायर, और फिर मैं आपको देता हूं 46 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। Okay, and so you can answer these kind of questions in the comment section that is mentioned below. And thanks for watching the video, and please subscribe the channel EduBiz Academy and press the bell icon for the further notification of the videos. Thanks a lot.